صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ملاقات، ملک کی مجموعی صورتحال، افغانستان سے متعلق امور اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا قومی دفاع کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ، مارکہ حق کے شہداء اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین۔ صدر مملکت کی مہنگائی کے دباؤ میں کمی، اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور عام آدمی کو ریلیف دینے کی ہدایت۔ برآمدات پر مبنی صنعت ملکی ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے ناگزیر، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی برآمدات میں اضافے کے لیے حکمت عملی بنانے کی ہدایت۔ حکومت کی توجہ برآمدات میں اضافے اور صنعتوں کو سہولتیں فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔ وزیر اعظم کو برآمدات میں اضافے کے حوالے سے اقدامات پر بریفنگ، برآمد کنندگان کو ٹیکس ری فنڈ کی بروقت ادائیگی کی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے زیر صدارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کے امور پر جائزہ اجلاس۔ آئی ٹی کا فروغ اور برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل۔ وزیر اعظم کے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں آسان خدمت مراکز کے حوالے سے کام تیز کرنے کی ہدایت۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محمد اسحاق ڈار نے امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں میں سہولت کاری کے حوالے سے پاکستان کے کردار کو اجاگر کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستانی اور ایرانی بحری جہازوں کی سنگاپور کے ذریعے واپسی میں امریکی تعاون کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ نے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ بنوں میں پولیس چوکی پر دہشت گرد حملے پر پاکستان کا افغان طالبان رجیم سے شدید احتجاج، افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، احتجاجی مراسلہ حوالے کیا گیا۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے مسلسل استعمال پر تشویش کا اظہار، افغان طالبان رجیم اپنی سرزمین دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، پاکستان قومی سلامتی اور اپنے شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا، ترجمان دفتر خارجہ۔ ہمیشہ تیار، بنیان مرصوص ہمیشہ تیار ہے ہم، حق کا علم حیدر کی تلوار ہے ہم۔ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر جانب دشمن کے تیاروں کا ملبہ تھا۔ ربط قائم فرد ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، پاکستان پائندہ باد۔ پلائی ہوئی دیوار ہے ہم، ہر دور میں فتح پہچان ہماری ہے۔ ہم سے قائم وطن کی ناموس، ہم ہیں بنیان مرصوص۔ وزارت اطلاعات نے خصوصی نغمہ جاری کر دیا۔ ملی نغمے میں پاکستان مونومنٹ میں منعقدہ مارکہ حق کی مرکزی تقریب کے دلکش مناظر شامل۔ تقریب میں شریک عوام کے والہانہ جذبات کی جھلکیاں۔ مسلح افواج اور پوری قوم وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہمیشہ تیار۔ قومی اسمبلی میں مارکہ حق کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور، قرارداد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے پیش کی۔ مسلح افواج کو شاندار خراج تحسین، امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، بھارت کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا، قرارداد کا متن۔ مارکہ حق میں عظیم کامیابی ملی، پاک فضائیہ نے دشمن کے طیارے مار گرائے۔ بھارت نے سنتاس معاہدے کو غیر قانونی طور پر معطل کر کے آبی جارحیت کی۔ پاکستان پر امن ملک ہے، خطے اور عالمی سطح پر امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق۔
वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। मौक़े हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ को जबरदस्त खराज तहसीन। चोरिस्तान और कच्चे के शहरियों के लिए आसान शराइत पर अपना खेत अपना रोजगार स्कीम समेत अहम फैसलों की मंजूरी। मार्काए हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर नख्याल आज़ाद कश्मीर में अजीमुश्शान रैली। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ख़वातीन, बच्चों समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। मार्काए हक में दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन। फाशिस्ट मोदी ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जवाज़ बनाकर जारियत का इर्तिकाब किया। हमारी सियासी क़यादत और बहादुर मुसल्लह अफवाज ने ऐसा जवाब दिया जो मुद्दतों याद रखा जाएगा। अमीर मकाम। मौक़े हक में तारीखी कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश की। सियासी और अस्करी क़यादत ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मौक़े हक में कौम ने मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना जंग लड़ी। हमारी मुसल्लह अफवाज वतन अजीज की हिफाजत और सलामती के लिए हर दम तैयार है। करारदाद का मतन। सिंध असम्बली में मार्काए हक के 1 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। करारदाद वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने पेश की। मुसल्लह अफवाज, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और कौमी क़यादत को खराज तहसीन। भारत ने जब भी वतन अजीज़ पर वार किया, पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। सिंध मुल्क की सलामती और दिफा के लिए फ्रंट लाइन पर होगा। सैयद मुराद अली शाह। अप्रैल 2026 में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से 3.5 अरब डॉलर्स तरसीलात ज़र मौसूल। रवा माली साल जुलाई से अप्रैल के दौरान मजमूई तरसीलात ज़र 33.9 अरब डॉलर्स रहीं। तरसीलात ज़र में सालाना 11.4% इजाफा रिकॉर्ड। सऊदी अरब से सबसे ज्यादा 841.7 मिलियन डॉलर्स की तरसीलात मौसूल। आज आप देखें कि सारी दुनिया में इस वक्त डिमांड मैनेजमेंट हो रही है। इवन आर नेबरली कंट्री जिसके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी हैं और जिनके वेरी डीप पॉकेट्स एज वेल, दे हैव गॉन इन फॉर एग्रेसिव डिमांड मैनेजमेंट। तो इसलिए आपको इस लिहाज से हमें देखना है कि सारी दुनिया में क्या हो रहा है और जितनी भरपूर कोशिश कर सकते हैं अली परवेज साहब और उनकी मिनिस्ट्री, दे आर एब्सोल्युटली ऑल आउट। और जो भी हमें मौका मिलेगा वो इंशाल्लाह हम रिलीफ पास करते जाएंगे। हमें दुनिया के हालात को देखते हुए इक़दाम करना होंगे। हुकूमत अवाम को भरपूर रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश कर रही है। अवाम को तमाम ज़रूरी सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मीडिया इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए कोशां हैं। मीडिया वर्कर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन से सहाफ़ियों के रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ का मामला उठाया जाएगा। 170 मुलाजमीन को बरतरफ करने वाले टीवी चैनल के इश्तिहारात बंद कर दिए गए हैं। इत्तेहादियों और अपोजिशन के साथ मिलकर सहाफ़ियों के मसाइल हल करेंगे। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्ला तारट का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मुबैना साजिश नाकाम बना दी। हमलावर खातून को तुर्बत से इस्लामाबाद जाते हुए हिरासत में लिया गया। खुदकुश हमले के लिए इस्लामाबाद का टारगेट दिया गया था। दहशत गर्दों का बलोच रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कोयटा में मीडिया ब्रीफिंग। खुदकुश हमले के लिए जहनसाजी की गई। डरा धमका कर BLA के लिए काम करने को कहा गया। खातून खुदकुश हमला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी का बन्नू का दौरा। फतखेल में दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। जख्मी एहलकारों की अयादत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। एक तरफ खड़ा है जुल्म जब बातिल और फसाद है, और एक तरफ है हक खड़ा जो पैगरे जिहाद है। खुदा के दुश्मनों पे बन के कहर हम जो आ गए, जुल्फ़े
वकार व अज़्ब की वो ज़र्ब बन के आ गए। तू याद रखी, तू याद रखी, तू याद रखी, तू याद रखी, मेरी एक ज़र्ब को याद रखी, याद रखी, मैं पाकिस्तान हूँ याद रखी, मैं पाकिस्तान हूँ याद रखी, तू याद रखी, तू याद रखी, तू याद रखी, तू याद रखी। एक तरफ है शर खड़ा मार्का हक ISPR का नया मिली नगमा तू याद रखी जारी। नए नगमे ने आवाम के दिल जीत लिए। नगमे ने कौम में वलवला और फख्र का नया जज्बा पैदा कर दिया। जनूबी वजीरिस्तान में मार्का हक की शानदार तकरीब। IGFC साउथ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, मुसल्लह अफवाज और कौम को शानदार खराज तहसीन। जिला इंतजामिया, कबायली मुशरान, उलमा और खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से रिफाइनरी सरबराहान की मुलाकात। ब्राउनफील्ड रिफाइनरी अपग्रेडेशन पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। अली परवेज मलिक की रिफाइनरी सेक्टर को मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए रुकावटों का खात्मा नागुज़ीर है। अली परवेज मलिक। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कश्मीर से मुतालिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बयान का खैर मकदम। बयान भारत के नाजायज कब्जे के खिलाफ मज़ाहमत करने वाले कश्मीरियों की उमंगों और जज्बात का अक्कास है। पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत हक़ खुद इरादियत के लिए जारी कश्मीरियों की जद्दोजहद के लिए बाइस तक़वियत है। हुर्रियत क़यादत। सदर ट्रंप ने अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ पर ईरानी नुमाइंदों का जवाब पढ़ लिया है। ईरान का जवाब काबिल कबूल नहीं। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी में जारी सिफारती अमल की ताज़ा पेशरफ्त पर तबादले ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी हममनसब के दरमियान 24 घंटे के दौरान ये दूसरा राबता है। ईरानी मीडिया। Good shout, good shout. What does the umpire think? He's width provided and oh yes, he's got a wicket. Hassan Ali once again. Tight shot. Oh no, he didn't. Nicely played. ढाका टेस्ट का चौथा दिन। खराब मौसम के बायस 50 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। बांग्लादेश को 179 रन की बर्तरी हासिल। दूसरे इनिंग्स में 3 विकेट्स के नुकसान पर 152 रन बना लिए। पहले इनिंग्स में बांग्लादेश ने 413, पाकिस्तान ने 386 रन बनाए थे। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Nicely. बार्सिलोना ने 29वीं मर्तबा स्पेनिश लीग ला लीगा का टाइटल जीत लिया। बार्सिलोना के रियल मैड्रिड को 2-0 से शिकस्त। 3 मैचेस कबल ही टाइटल अपने नाम कर लिया। मॉरिस रैशफोर्ड और फेरान टोरेस ने एक गोल किया। टाइटल जीतने पर बार्सिलोना के शायकीन का भरपूर जश्न। और इटालियन ओपन टेनिस, जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव और नॉर्वे के कैस्पर रुड प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। ज़ेवरेव की बेल्जियम के अलेक्जेंडर ब्लॉक्स को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। कैस्पर रुड की जमहूरियत चेक के जरी लहिका के खिलाफ कामयाबी। E facciamo un applauso a Casper Ruud. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील भी शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।
जब हुनर से आरास्ता होंगे नौजवान तो फिर खुशहाल होगा पाकिस्तान। वजीर आजम के इस ख्वाब की तकमील के लिए वर्ल्ड स्किल्स पाकिस्तान और नैफटेक के बाहमी इश्तिराक से नेशनल स्किल्स कंपटीशन 2026 का इनेकाद। ग्राफिक डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और कुकिंग के मुकाबला जात। जीतने वाले खुशनसीबों को मिलेंगे कीमती इनामात और शंघाई वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज। तो फिर आए अपने हुनर को ले जाएं सरहदों के पार। 12 और 13 मई 2026 नैफटेक और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्लामाबाद करेंगे आपका इंतजार। मजीद तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन। मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। फिर वही बात, पहले ही 2 बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी। आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं। ये सब गलत फहमियाँ हैं। हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता। खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुताल्लिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। हमेशा तैयार, बुनियानुम मरसूस, हमेशा तैयार है हम। हक का अलम, हैदर की तलवार है हम। बुनियानुम मरसूस, हमेशा तैयार है हम। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। अज़ीज़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में मुलाकात की। इस मौके पर मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ उमूर और ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मारका हक के शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कौमी दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि मुश्किल जोग्राफिया और इलाकाई सूरत हाल, मशरक़ वस्ता में कशीदगी और सप्लाई चेन मुतासर होने के बावजूद आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। सदर ममलकत ने महंगाई के दबाव में कमी, अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी और आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार, सेनेटर सलीम मांडवीवाला और डॉक्टर आसिम भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बरामदात पर मबनी सनत तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए नागुज़ीर है। बरामदी शोबे से मुंसलिक नए कारोबार और सनतों के फ़रोग के लिए हिकमत अमली मुरतब की जाए। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में मुल्की बरामदात में इजाफे से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की तवज्जो बरामदात में इजाफे और सनतों को सहूलतों की फराहमी पर मरकूज है। बरामदात बढ़ाने के लिए अहमियत के हामिल छोटे और दरमियाने कारोबार और सनतों को सहूलतें फराहम करने से मुतालिक लाहे अमल तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्की मसनूआत को आलमी मार्केट में मुसाबकत दिलाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जिद्दत बहुत मुआविन साबित होगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि बरामद कुनंदगान को टैक्स रिफंड की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाया जाए। इजलास में मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने पॉलिसी मुसवदे पर अपनी तजावीज़ पेश की।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में IT के शोबे का फ़रोग़ और IT से मुतालिक बरामदात में इजाफ़ा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के उमूर बारे जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान के नौजवानों में IT के हवाले से बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है, जिससे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम के हवाले से काम तेज़ करने की हिदायत करते हुए आसान खिदमत की सहूलियात को सूबों में भी शुरू करने के हवाले से सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि IT के शोबे में शहरी और देही इलाकों के दरमियान फ़र्क को कम करने के लिए सूबाई और ज़िलाई सतह पर हुकूमतों का ताउन हासिल किया जाए। इजलास को मुल्क में IT के फ़रोग़ के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क भर में डोमेस्टिक इंटरनेट कनेक्शंस की तादाद 2024 में 1.9 मिलियन थी, जो 2026 में बढ़कर 5.1 मिलियन हो गई है। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान से 4.5 से 4.6 अरब डॉलर्स की IT बरामदात मुतवक्के हैं। इजलास को बताया गया कि हाल ही में पाकिस्तान में 5G सर्विसेज के लिए नीलामी की गई, जो कि 2016 से अब तक होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नीलामी थी। इस ऑक्शन से पाकिस्तान को 509 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू हासिल हुआ, जबकि मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ के हवाले से फरवरी 2026 में इंडस AI वीक का एहतमाम किया गया। इसकी तकरीबात 30 शहरों में मुनक़िद हुई। इंडस AI वीक में 100 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी मंदूबीन ने शिरकत की और 88 पवेलियंस बनाए गए। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल्स और हेल्थ यूनिट्स को फाइबर कनेक्टिविटी फराहम कर दी गई है। इस्लामाबाद को फ्री इंटरनेट हॉटस्पॉट्स की फराहमी का काम आखिरी मरहले में है। सैदपुर मॉडल विलेज और फातिमा जिन्ना पार्क में ई-लर्निंग पॉड्स नस्ब किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें बदलती हुई इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हुए इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ और ईरान और अमरीका के दरमियान रवाबित के हवाले से इस्लामाबाद की सिफारती कोशिशों की हिमायत का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने आबनाए हुर्मुज़ समेत मैरी टाइम सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर तबादला ख्याल किया और इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेस्ली बेकर ने मुलाकात की। इस दौरान इलाकाई सूरत हाल और पाकिस्तान अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने अमरीका और ईरान के दरमियान राब्ते में सहूलत फराहम करने में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जारी सिफारती कोशिशें खित्ते और इससे बाहर अमन व इस्तेहकाम में मुआवन साबित होंगी। नायब वज़ीर आज़म ने सिंगापुर के रास्ते पाकिस्तानी और ईरानी बहरी जहाज़ों की वतन वापसी में जारी अमरीकी ताउन को भी सराहा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से मशरिक़ वस्ता तनाज़े के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे यान आलन ने मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों की भरपूर तारीफ़ की। उन्होंने इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की मुसलसल हिमायत का इजहार किया। इस मुलाकात में इलाकाई पेशरफ्त और पाकिस्तान की जारी काविशों के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए बेहतरीन किरदार और काविशों पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात की जानिब से मार्का हक़ की अजीम कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने से मुतालिक तकरीब की झलकियाँ बशमूल तैयार करदा मिली नगमा पेश किया गया। हमेशा तैयार हमेशा तैयार है हम, हक़ का अलम हैदर की तलवार है हम। हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और हर जानिब दुश्मन के त्यारों का मलबा था। रब्त कायम फर्द मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं, पाकिस्तान बाइंदाबाद। दीवार है हम हर दौर में पता पहचान हमारी है, बुनियाद मरसूस हमेशा तैयार है हम।
قومی اسمبلی نے افواج پاکستان کی جرت، پیشہ ورانہ مہارت اور بھارت کے خلاف مؤثر دفاعی کارروائیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ایوان میں مارکہ حق کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں واضح کیا گیا کہ پاکستان امن کا خواہاں ضرور ہے مگر اس خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ تفصیل بتائیں گی صدف افضل۔ مارکہ حق کے حوالے سے قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستانی افواج نے 10 مئی 2025 کو بھارتی جارحیت کے مقابلے میں غیر معمولی تیاری، بہترین حکمت عملی اور بھرپور عزم کا مظاہرہ کیا۔ قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں پیش کی۔ قرارداد میں اس عزم کا بھی اعادہ کیا گیا کہ ملکی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ Pakistan's desire for peace should not be misconstrued as weakness. Any misadventure against Pakistan's sovereignty and territorial integrity will not be tolerated, and Pakistan's defense forces will hit back with all their might and main. Reaffirms an unwavering resolve and determination of the nation to stand with the armed forces of Pakistan in defending the geographical and ideological frontiers of the motherland, come what may. Pakistan Zindabad. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ 10 مئی کا دن ملکی تاریخ کا روشن اور تابناک دن ہے۔ ہماری بہادر افواج نے پاک سرزمین کی جانب بڑھتے ہوئے دشمن کے ناپاک قدموں کو روکا۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ جب رات کے اندھیرے میں ایک بزدل دشمن پاکستان کے پرامن اور نہتے عوام پر حملہ ور ہوا تو پوری قوم اور افواج پاکستان اپنے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب اور سپاہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی۔ ایک طرف جہاں زمینی محاذ پر دشمن اپنی چوکیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوا، وہیں پاکستان ایئر فورس نے ساری دنیا کے سامنے اپنا فیصلہ کن فضائی برتری تسلیم کروا لی۔ دشمن اپنے 8 جہاز کو ہمارے شاہینوں کے ہاتھوں تباہ کروا کر پسپا ہونے پر مجبور ہوا۔ اس مارکہ حق میں پاکستان بحریہ نے جس پیشہ وارانہ مہارت سے دشمن کو اس کی بندرگاہوں میں محدود کر کے رکھ دیا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ خطے اور عالمی سطح پر امن کے قیام کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بھارت کے خلاف مارکہ حق میں فیصلہ کن کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں معظم الدین۔ بھارت کے خلاف مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا، جس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کی۔ اجلاس میں صوبائی وزیر خزانہ اور پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابی کی قرارداد پیش کی، جسے ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ یہ ایوان مارکہ حق کی تاریخ ساز کامیابی پر 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان کی مسلح افواج، دیگر دفاعی اداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور مارکہ حق کے شہداء اور غازیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ اس مارکے کی کامیابی مسلح افواج کی بہادری کے ساتھ ساتھ قومی اتفاق اور یگانگت کی مرہون منت ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی کا سہرا سیاسی اور عسکری قیادت کی بہترین حکمت عملی کے ساتھ ساتھ عوام، علماء کرام، میڈیا، سول سوسائٹی، اقلیتی برادری اور ان سب کے درمیان پائے جانے والی قومی یکجہتی اور اتفاق کے سر ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ افواج پاکستان نے ہر محاذ پر اپنی پیشہ ورانہ برتری ثابت کی۔ انڈیا کو یہی پیغام دیا ہے کہ پہلی غلطی انہوں نے کی، ہماری افواج نے چائے پلا کے انہیں جواب دیا۔ دوسری غلطی انہوں نے کی، ہم نے ان کا رافائل گرا کے ان کو جواب دیا۔ تیسری غلطی کی، ہم نے ان کے گھر میں گھس کے ان کا S-400 میزائل سسٹم تباہ کی ہے۔ آج پاکستان کی سیفٹی، پاکستان کی سینٹٹی میاں نواز شریف کے مرہون منت ہے، جنہوں نے 28 مئی کو اس ملک کو ایٹامک پاور بنایا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر قانون رانا اقبال سمیت صوبائی وزراء، حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے بھی خطاب کیا اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور مسلح افواج کے افسروں اور جوانوں کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ اراکین اسمبلی نے واضح کیا کہ پوری قوم ہر قسم کی جارحیت اور دہشت گردی کے خلاف متحد اور اپنی افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔
سندھ اسمبلی نے مارکہ حق میں عظیم فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر قومی قیادت اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے پیش کی۔ رپورٹ کریں سید جہانگیر علی۔ مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے پاک افواج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور قومی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن بنیاد مرصوص میں افواج پاکستان کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت کو سراہا، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کی سفارتی کوششوں کو خراج تحسین اور شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قومی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے لوگوں نے، ہماری آرم فورسز نے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے، ہماری یوتھ نے، ہماری میڈیا نے، یعنی پوری قوم نے اکٹھا ہو کے جب ایک دشمن نے ہم پہ وار کیا تو پوری قوم نے اکٹھا ہو کے اس کا ایسا جواب دیا کہ دشمن اس سے نکل نہیں سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی دشمن بھارت نے وطن عزیز پر وار کیا تو پوری قوم متحد ہو گئی۔ پاکستان امن چاہتا ہے تاہم امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سندھ حکومت ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے فرنٹ لائن پر ہوگی۔ اجلاس سے مختلف اراکین اسمبلی نے بھی خطاب کیا اور پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ آپ سے ملاقات ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سرسبز کی نائٹروفوس اور کیلشیم امونیم نائٹریٹ سے حاصل کریں کپاس کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار اور کامیابی کے سفر میں رہیں آگے۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ زمین ہماری ہے، یہ بحر بھی ہمارا ہے، فلک پہ اونچی یہ اڑان ہماری ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے ہم، ہر دور میں فتح پہچان ہماری ہے، بنیاد مرصوص ہمیشہ تیار ہے ہم، اس دل دشمن ذرا غور سے سن، اب تک کبھی آزمانا ہمیں قسم ہے اپنی مٹی کی، تیرا نام نشان مٹا دیں گے۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں ارکان نے مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں طاہر جعفری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے 34ویں اجلاس میں کابینہ ارکان نے مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف، وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اجلاس میں کچے میں کامیاب آپریشن پر وزیر اعلیٰ مریم نواز اور ان کی ٹیم کے بروقت اقدامات کو سراہا گیا۔ کابینہ نے کچے سے چولستان تک، طالب علم سے کسان تک، میگا پروجیکٹ سے مائکرو ریلیف تک بڑے فیصلوں کی منظوری دی۔ صوبائی کابینہ نے اسکولوں میں گرمیوں کی تعطیلات کی بھی منظوری دی۔ کابینہ نے آسان شرائط پر اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم شروع کرنے کی منظوری بھی دی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں صنعتیں لگانے کے لیے حکومت سرمایہ کاروں کو مکمل معاونت فراہم کرے گی۔ انہوں نے صنعتیں لگانے کا عمل آسان بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ NOCs اور دیگر امور میں کوئی رکاوٹ یا مسائل پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ صوبائی کابینہ نے انشورنس کمپنی کے قیام کی باضابطہ منظوری دی۔ اجلاس میں قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ میں مزید 200 ایکڑ رقبے کی توسیع، پنجاب میں ایکسل لوڈ مینجمنٹ نظام کے نفاذ، مری گلاس ٹرین منصوبے کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کی تنخواہوں اور الاؤنسز کی منظوری دی گئی۔ پنجاب آٹزم اسکول اور ریسورس سینٹر
तरमीमी एक्ट 2026 के ड्राफ्ट बिल की मंजूरी भी दी गई। पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एंड एंटी सोशल बिहेवियरल एक्ट 2025 और मरियम को बताएं प्रोग्राम की अहलियत के मेयार और फाइनेंशियल एलोकेशन में तब्दीली की भी मंजूरी दी गई। सैलाब से बचाव और दरियाओं के कटाव को रोकने के लिए हिफाजती इकदाम की मंजूरी भी दी गई। इजलास ने पोटोहार में ज़राअत की तब्दीली के मंसूबे और सब्सिडी, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तंजीमें नौ, इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी तरमीमी एक्ट और एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में तरमीम की भी मंजूरी दी गई। सूबाई काबीना ने जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कमांड सेंटर के क़याम, दाता दरबार अस्पताल लाहौर का इंतजाम महकमा औकाफ के ज़ेर इंतजाम करने के अलावा पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी में नई भर्तियों पर पाबंदी खत्म करने और चीफ मिनिस्टर स्टॉक इनिशिएटिव की भी मंजूरी दी। काबीना ने पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रूल्स 2025 में तरमीम, चीफ मिनिस्टर मिनारिटी कार्ड के मुस्तहकीन की तादाद में इजाफे की मंजूरी समेत दीगर अहम फैसले भी किए। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि जिस तरह मार्का हक में पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम ने भरपूर जज्बे के साथ अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का साथ दिया, वो अब तारीख का सुनहरा बाब है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर वाक़ निक्याल कोटली के इलाके फतेहपुर में मार्का हक की कामयाबी के हवाले से जलसा आम से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि फैशिस्ट मोदी हुकूमत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जवाज़ बनाकर गुज़श्ता साल पाकिस्तान के खिलाफ जाहरियत का इर्तिकाब किया, जिसका हमारी सियासी क़यादत और बहादुर मुसल्लह अफवाज ने ऐसा दिनदान शिकन जवाब दिया जो मुद्दतों याद रखा जाएगा। पाकिस्तान वही दुनिया के बेहतरीन अफवाज में से, और उन्होंने जिस तरह इंडिया को घुटने टिकने पर मजबूर कर दिया, ये सोच से बाहर है। और उनका वही ऑपरेशन संदूर इंडिया के लिए वही तंदूर बना दिया। इसी मौके पर उन शुहदा को आज अकीदत पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने खून के बदले आज आपको ये दिन देखने को दिया। उन गाजियों को भी सलाम पेश करना चाहता हूँ जिनकी मेहनत की वजह से आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ निकल गया। वज़ीर इत्तलात अताउल तारट ने कहा है कि मीडिया चैनल्स की आसानी, बकाया जात की अदायगी और उन्हें मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए कोशां हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की बरतरफी का मामला पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के साथ उठाएंगे। अताउल तारट सहाफ़ियों की जॉब सिक्योरिटी और मराद की फराहमी के लिए अपोजिशन के साथ मिलकर इक़दाम करेंगे। 170 मुलाजमीन बरतरफ करने वाले टीवी चैनल्स के इश्तिहारात बंद कर दिए हैं। मीडिया के चैनल्स को आसानी पैदा करने के लिए, उनकी पेंडिंग लायबिलिटीज खत्म करने के लिए और मजीद उनको फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए दिन रात कोशिश हैं। ये मामला हम टेकअप करेंगे पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के साथ कि ये जो मुलाजमीन हैं इनका रोजगार ना छिने और इस पे जॉब सिक्योरिटी और जॉब सिक्योरिटी से बढ़ के उनकी मराद के हवाले से मामला तय किए जाएं। आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम अपने ऑनरेबल एलाइज और इवन ऑपोजिशन के बेंच के लोगों के साथ कलेक्टिवली इसको हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जिस टीवी चैनल ने 170 मुलाजमीन निकाले हैं उनके हमने फिलफौर ऐड बंद कर दिए जब तक वो आके एक्सप्लेन नहीं करते कि मामला है क्या। एक और टीवी चैनल जिसने 3 माह से तनख्वाह नहीं दी, उनको हमने इस्लामाबाद बुलाया कि उनकी मैनेजमेंट के साथ बैठ के इस मामले को हल करें। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि खित्ते में कशीदगी के बायस गैस की फराहमी मुतासर हुई, ताहम मुल्क की तवानाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोशां हैं। कौमी असम्बली ने कौमी इदारा बराए अवामी और रवायती वर्सा लोक वर्सा तरमीमी बिल 2025, बहरी जहाज़ों के ख़तरनाक मवाद का माहौल दोस्त इंतज़ाम बिल 2025, मयारी वक्त तशरीह हवाला जात तरमीमी बिल और सिविल मुलाजमीन तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिए। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी हो गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इदारे के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना ने इदारा जाती जिद्दत, तरीक़ाकार में आसानी और ख़ुदकार निज़ाम के फ़रोग़ की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि इससे शफाफियत बढ़ेगी, गैर ज़रूरी इंसानी मुदाखलत कम होगी और टैक्स दहिंदगान को सहूलत मैसर आएगी। उन्होंने वज़ारत ख़जाना के तहत टैक्स पॉलिसी दफ्तर के फ़ाल होने की अहम इदारा जाती इस्लाह करार देते हुए कहा कि इस इक़दाम से टैक्स पॉलिसी साजी मज़ीद मजबूत होगी और पॉलिसी और इंतज़ामी उमूर में बेहतर हम आहंगी पैदा होगी। मुलाकात में टेक्नोलॉजी और डिजिटल निज़ाम के ज़रिए टैक्स अमलदारी, निगरानी और महसूलात के निज़ाम को बेहतर बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने दस्तावेज़ी मईशत, ग्रुप टैक्स निज़ाम, बरामदी खदमात और मुख्तलिफ शोबों में टैक्स निज़ाम को यकसा बनाने से मुतालिक तजावीज़ पेश की।
स्टेट बैंक के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अप्रैल 2026 में 3.5 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र मौसूल हुई हैं, जिससे मुल्की तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मरकजी बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र में साल ब साल बुनियादों पर 11.4% इजाफा हुआ है। ये तरसीलात ज़र बुनियादी तौर पर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, बरतानिया और अमरीका से मौसूल हुई हैं, जो मुल्की मईशत के लिए अहम हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 10 माह के दौरान पाकिस्तान को 33 अरब 86 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र मौसूल हुई, जो गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 8% ज़्यादा हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अप्रैल में सबसे ज़्यादा 84 करोड़ 20 लाख डॉलर सऊदी अरब से मौसूल हुए, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने 73 करोड़ 50 लाख डॉलर भिजवाए। इसी तरह बरतानिया से 56 करोड़ 40 लाख डॉलर्स और अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों ने 32 करोड़ डॉलर्स का ज़र मुबादला पाकिस्तान भिजवाया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें कपास की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। इस्लाम के सिपाही हम, दुश्मन के लिए तबाही है। मैदान में जब कूदे शहीद हैं या गाजी हम। बुनियाद मरसूस हमेशा तैयार है हम। हक का अलम हैदर की तलवार है हम। बुनियाद मरसूस हमेशा तैयार है हम। रात की तारीकी में दुश्मन ने अचानक वार किया, एक कहर की सूरत पलटे हम, दुश्मन को तबाह ख्वार किया। बुनियाद मरसूस हमेशा तैयार है हम। देंगे दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने नई विफाकी और सूबाई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम और यूनिवर्सिटीज़ के चार्टर के मुसवदे के बिल के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत की। नायब वज़ीर आज़म ने नए इदारों को तालीम, तहकीक और बेहतरीन कारकर्दगी के बैनुल-अक़वामी मयार पर पूरा उतरने के लिए फ्रेमवर्क को जदीद बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में फैसला किया गया कि HEC 1 जून तक यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के मयार पर नज़रसानी करे, ताकि तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस को हतमी शक्ल देने के बाद अपडेट करदा फ्रेमवर्क के तहत जांचा जा सके। इजलास में जामियात की कारकर्दगी, डिसिप्लिन, आलमी दर्जाबंदी और बैनुल-अक़वामी सतह पर तलब में शोबों को तरजीह देने की अहमियत का भी अहाता किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि आला तालीम से तलबा को रोज़गार, इख्तरात और तहकीक के मुल्की और आलमी मौक़े मुयस्सर आएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मुबैना साजिश नाकाम बना दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कोयटा में मीडिया ब्रीफिंग में कहना था कि हमलावर खातून को तुर्बत से इस्लामाबाद जाते हुए हिरासत में लिया गया। उन्हें खुदकुश हमले के लिए इस्लामाबाद का टारगेट दिया गया था। मज़ीद तफसील शेयर करेंगे वकार अहमद। बलूचिस्तान की एक और बच्ची फितना अल हिंदुस्तान का ईंधन बनने से बच गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मुबैना साजिश नाकाम बना दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का अहम कार्रवाई पर मीडिया ब्रीफिंग में कहना था, हमला आवर खातून को तुर्बत से इस्लामाबाद जाते हुए हिरासत में लिया गया। खातून को खुदकुश हमले के लिए इस्लामाबाद का टारगेट दिया गया था और इनका प्लान था इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने का। और पाकिस्तान के कैपिटल में इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर आप देखें, जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंगेज कर रहा है, ऐसे टाइम पे इस्लामाबाद के अंदर इंडियन बिहेस्ट पे ये काम करना, जो इनके हैंडलर्स हैं, फिर उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, तो उससे ये सारी चीज़ें पता चली कि मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान को इस वक्त जो एक टेक ऑफ मिला हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसको किस तरीके से सबोटाज किया जाए। दहशतगर्दी का बलूच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय ईमा पर इस्लामाबाद को हदफ बनाने का मकसद मुल्क के अमन और तरक्की को सबोताश करना था।
मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि इनका बलोच रवायात से इन दहशत गर्दों का कोई ताल्लुक नहीं, हम रवायतों के अमीन लोग हैं, इन लोगों का बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन वो भी अपनी बलोच बच्चियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ वो एक्सप्लॉइट करके फिर आप जो है वो अपने इंटरनेशनल आका जो आपका है उसको खुश करने के लिए आप जो है वो अपनी बच्चियों का इस्तेसाल कोई तसव्वुर कर सकता है? खातून अंडर एज है जिसकी जहन साजी करके खुदकुश हमले के लिए तैयार किया गया। हिरासत के बाद खातून को बाइज्जत तरीके से महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। मीडिया ब्रीफिंग में खातून का बयान भी दिखाया गया। मने कजना मना तोरसेंते मना गुशी तज़ीम वसकार बेका थी पेता एवट कने तो कार नको मंगो चलो सही है। बलोच रिवायात में खवातीन को बेहद एहतराम हासिल है और दहशतगर्द भारतीय ईमा पर अपने मजमूम मकासद के लिए खुदकुश तैयार कर रहे हैं। मुबैना खुदकुश हमला आवर खातून को बाइज्जत तरीके से वालिद के हवाले कर दिया गया। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। नाजरीन, बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया। हमले में 15 पुलिस एहलकार शहीद जबकि एक शहरी समेत 4 अफराद जख्मी हुए हैं। वज़ारत खारजा ने अफगान नाज़िमुल उमूर को आगाह किया कि वाक़ये की तफसीली तहकीकात, जमा किए गए शवाहिद और तकनीकी इंटेलिजेंस से निशानदही होती है कि हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मुक़ीम दहशतगर्द है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। तर्जुमान के मुताबिक अफगानिस्तान पर वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान इस वहशियाना फेल के मरतकब अफराद के खिलाफ फैसला कुन जवाब देने का हक महफूज रखता है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग एक मुश्तरका मकसद है और अफगान तालिबान रजीम को अपने इस अज़्म का एहतराम करना चाहिए कि वो अपनी सरजमीन को दूसरे मुल्कों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने बारहा तालिबान रजीम पर जोर दिया कि वो अफगान सरजमीन पर फितना अल खारिज, फितना अल हिंदुस्तान और दाइश जैसे अनासर के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। तर्जुमान के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम पर वाज़ेह किया गया कि अगर वो इन दहशतगर्द तंजीमों को पनाह देते रहे तो पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स लॉयर्स फोरम सिंध के सदर काजी बशीर एडवोकेट ने कराची में मुलाकात की। इस मुलाकात में वकीला बरादरी को दरपेश मसाइल से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। सदर पीपल्स लॉयर्स फोरम सिंध ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को तंजीमी उमूर से मुतालिक ब्रीफ किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के उस बयान का खैर मकदम किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को कश्मीर के बगैर नामुकम्मल करार दिया। KMS के मुताबिक श्रीनगर से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा कि ये बयान अपने मादरे वतन पर भारत के नाजायज़ कब्जे के खिलाफ मज़ाहिमत करने वाले कश्मीरियों की उमंगों और जज्बात का आकास है। उन्होंने कहा कि तनाज़े कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक ही हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल ने बजा तौर पर कहा कि अगस्त 2019 के बाद मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आबादी के तनासुब में तब्दीलियाँ और नौआबादियाती पॉलिसीज़ ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकती। हुर्रियत तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत हक़ खुद इरादियत के लिए जारी कश्मीरियों के जद्दोजहद के लिए बाइस तक़वियत है। टेक पॉलिसी प्रेस की तरफ से शाया एक बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट में निशानदही की गई कि मोदी हुकूमत ने किस तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर को सख्त निगरानी वाले खत्ते में तब्दील कर दिया है, जहां सहाफ़ियों, इंसानी हुकूक के कारकुनों और आम शहरियों की मुसलसल निगरानी की जा रही है और इन्हें डराया धमकाया जा रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने पुंछ में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मसला कश्मीर के हल और खत्ते में देरपा अमन को यकीनी बनाने के लिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस शाहिया आफरीदी से फ्रांसिस किंग्स कौंसिल चैम्बर के बैरिस्टर सायरा कबीर शेख ने सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मुलाकात की और उन्हें बरतानिया की ऑनर टेम्पल सोसाइटी के एजाजी बेंचर मुकर्रर होने से मुतालिक आगाह किया और मुबारकबाद दी। चीफ जस्टिस ने कानूनी तालीम का आला मयार बरकरार रखने पर विनर टेम्पल के किरदार को सराहा। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून साजिदा फारूक तारड़ ने हल्का NA 127 में मसरूफ दिन गुजारा। तफसील बता रहे हैं मसूद अली।
عوام سے براہ راست رابطہ رکھنا اور ان کے دکھ سکھ میں شامل ہونا نون لیگ کے رہنماؤں کا خاصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ساجدہ فاروق تاڑر نے قومی اسمبلی کے حلقے این 127 میں ایک بھرپور دن گزارا. سینئر رہنما ساجدہ فاروق تاڑر نے مرکزی دفتر میں خاتون کوآرڈینیٹر سعدیہ ملک کے چچا زاد بھائی کی وفات پر فاتح خوانی کی اور اظہار افسوس کیا. بارضا حلقے میں کاشف سجن کرسچن کمیونٹی کے درینہ ساتھی کی خالہ کے انتقال پر ان کے گھر گئیں اور اہل خانہ سے اظہار افسوس کیا. لیگی رہنما یونین کونسل 224 پنڈی راجپوتا کے کونسلر چودھری انوار کے گھر گئیں اور ان کے والد کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے اظہار افسوس اور تعزیت کی. ساجدہ فاروق تاڑر یونین کونسل 224 میں سینئر کارکن ملک رحمت کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت اور فاتح خوانی کی. اس موقع پر اکبر خان چیئرمین چودھری بابر ملک آصف اور دیگر کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے. لیگی رہنما ساجدہ فاروق تاڑر نے یونین کونسل 226 کے سینئر کارکن چودھری انعام کے کزن کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور حادثاتی موت پر اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور غمزدہ خاندان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی. وہ یونین کونسل 228 میں ایڈوکیٹ محمد عمر کمبو کے گھر گئیں اور ان کی خوش دامن کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور مرحومہ کی روح کے اصالہ ثواب کے لیے دعا کی. مسعود علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی جانب سے سیکٹر F14 اور F15 اسلام آباد کے متاثرین کے لیے اہم اور تاریخی پیش رفت. ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ کیپٹن ظفر اقبال کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی الماس صبحی ثاقب اور ڈائریکٹر لینڈ سعد بن اسد نے لینڈ شیئرنگ بنیاد کے تحت متاثرین میں پروویژنل آفر لیٹرز تقسیم کیے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سیکٹر F14 اور F15 وفاقی دارالحکومت کے اہم ترین رہائشی منصوبے ہیں. ان منصوبوں پر ترقیاتی کاموں کو تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ لینڈ شیئرنگ بنیاد کے تحت متاثرین کو ان کا جائز حق دینا ہاؤسنگ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے. ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید. میں ہوں قاسم علی. ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی پنجاب، بالائی وسطی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پٹھوار میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اس دوران بعض مقامات پر درمیانی سے تیز بارش اور یالہ باری کی بھی توقع ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی اضلاع میں شدید گرم رہا. تاہم بالائی وسطی پنجاب، خطہ پٹھوار، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہوئی. ناظرین، کھیل میں خوش آمدید. میں ہوں سمیع اقبال. آپ کو بتائیں کہ ڈھاکہ ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کو پاکستان کے خلاف 179 رنز کی برتری حاصل ہو گئی. میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. ٹیسٹ کے چوتھے روز خراب موسم کے باعث صرف 50 اوورز کا کھیل ممکن ہو سکا. میزبان بنگلہ دیش نے دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 152 رن سکور کر لیے. مومن الحق اور نجم الحسین شانتو نے نصف سینچریاں سکور کیں. شاہین شاہ افریدی، حسن علی اور محمد عباس نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں بنگلہ دیش نے 413 اور پاکستان نے 386 رنز بنائے تھے. اذان اویس نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں سینچری سکور کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کا حالیہ دورہ بنگلہ دیش میں کرکٹ شائقین نے گرم جوشی سے استقبال کیا. ڈھاکہ پہنچنے پر کرکٹ پرستاروں کی بڑی تعداد نے انہیں خوش آمدید کہا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں محسن نقوی نے ہاتھ ہلا کر شائقین کا شکریہ ادا کیا. اپنے دورے میں چیئرمین PCB نے BCB حکام سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ تعلقات کو مضبوط بنانے پر بات چیت کی گئی. اور کرکٹ آسٹریلیا نے دورہ پاکستان کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا. مچل مارش آسٹریلوی ٹیم کی قیادت کریں گے. دیگر کھلاڑیوں میں ایلیکس کیری، نیتھن ایلس، کیمرن گرین، جوش انگلس، میتھیو کنمن، مارنس لبوشن، رالی میریڈٹ، اولی پیک، میتھیو رینشا، تنویر سانگا، لیام اسکاٹ، میتھیو شارٹ،
بلی اسٹینلیک اور ایڈم زیمپا شامل ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ پہلا میچ 30 مئی کو راولپنڈی، جبکہ دوسرا اور تیسرا ون ڈے میچ 2 اور 4 جون کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ بلیٹن مکمل ہوا۔ سمیع کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔